Hello students, this is our second unit of class 12 electric potential and capacitance. This is our fourth lecture. In our last lecture, we had discussed the electric potential due to continuous charge distribution and due to a thin charge spherical shell. The next topic is equipotential surface. Equ means equal potential. It means any surface that has the same potential at every point. एक ऐसी surface जिसके हर point पर potential क्या हो, same हो, that is known as equipotential surface. The term equipotential surface had come in the potential due to a thin charge spherical shell. So it means any surface that has the same potential at every point on it. यानी एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. समटाइम इट मे बी ए बॉडी और स्पेस. It may be any body or space. The simplest example is thin charge spherical shell. Thin charge spherical shell for potential at surface point. Potential at surface point. Remember this. V is equal to the result had come 1 upon 4 pi epsilon naught q upon capital R. Since R, this is a constant, radius of the shell will remain constant and q, the charge given to a shell, will be constant. So at every point on this surface, the potential will be constant. So this thin charge spherical shell will behave like a equipotential surface. Okay, so this is constant. So any surface that has same potential at every point will be known as equipotential surface. Now let's discuss their properties. Now let's discuss the properties of equipotential surfaces. The first property is no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. यानी किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपको किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए किसी वर्क को करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी या नहीं किया जाएगा. सपोज दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर आर टू पॉइंट्स A, B and we want to move a test charge Q naught from A to B. Okay, here the potential is constant because this is an equipotential surface and we want to move a test charge Q naught from A to B. So suppose this is the displacement dr. Work done in moving the test charge from A to B. W will be, we are going to define the work by potential. That will be, potential is work per unit test charge. So work done will be potential difference into test charge. What will be the potential difference? It will be VB minus VA and into Q naught. But since A and B both are at equipotential surface, so VA will be equal to VB. Therefore, work done will be 0. In this way, we can see that there is no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए
हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना होता है, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो एंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन द वर्क डन इज जीरो. Okay, let's discuss the second property. Second property is electric field is always normal to the surface of a conductor. या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन में भी प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. तो किसी भी सरफेस के कंडक्टर के नॉर्मल क्या होती है? इट मींस सपोज दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, so the electric field will be always in this direction perpendicular to the field. Why? Because if there is any component parallel to the surface, अगर इसके पैरेलल कंपोनेंट्स में इसका कोई भी इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, so in moving a test charge from any point A to B, there will be a force F is equal to Q naught E, and with this force we can calculate the work done. With this force we can calculate the work done. But we had discussed in our first property that no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. Okay? तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर और कोई भी जो कंडक्टर होगा वो उसकी जो सरफेस होगी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज क्या होंगी? इसके परपेंडिकुलर होगी. क्लियर? सो हाउ वी विल राइट दिस? If there is any parallel component, there is any component of electric field parallel to surface, then in moving a test charge from between 2 points, on the surface, a work will be obtained. But there is no work in doing so. बट वहां पर कोई भी ऐसा वर्क नहीं मिलता है ऐसा करने में. अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस किया. ओके, सो इट मीन्स इट implies that electric field is always normal to the surface of a conductor, and the surface of every conductor behaves as an equipotential surface. किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होगी वो हमेशा किस तरीके से बिहेव करेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगी. लेट्स डिस्कस टू मोर प्रॉपर्टीज. दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होगी. The explanation of this is since we know that the relation between electric field and potential difference, E is minus dV upon dr. Okay. For equipotential surface, dV is constant. There will be no potential difference because the potential is same at every point of the surface. So from here we can write E is directly proportional to dr.
Okay, and from here we can write dr is directly proportional to E. From here we can see that if E is strong, if E is strong, the spacing between the surfaces is small. If E, because they are inversely proportional dr and D, if E strong, then dr is small. It means the equipotential surfaces are closer to each other. If E is weak, dr is large. It means in weak electric field, equipotential surfaces are farther apart. So this is the explanation. Okay. Now the last and fourth one is no equipotential surface intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल बी टू पोटेंशियल ऑन द सेम सरफेस, which cannot happen in a equipotential surface. ओके, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर दोनों पोटेंशियल, सपोज दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, दिस इज एट 10 वोल्ट एंड दिस इज एट 5 वोल्ट. ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट इन द इंटरसेक्शन रीजन both surface will have two potential, 10 volt and 5 volt. It cannot happen because equipotential surface contains only a single constant potential. Okay, so these are the properties of equipotential surfaces. Now equipotential surfaces of various charge systems. अलग अलग चार्ज सिस्टम्स की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? फर्स्ट वी हैव टू राइट द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 1/4 pi epsilon naught q by r. If r is constant, then v is constant. अगर r कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट है. इट मींस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एक फिक्स डिस्टेंस पर अगर हम एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल क्या करें, ड्रॉ करते हैं, तो ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. ओके, एंड सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, radially outwards, so at every point of the equipotential surface electric field is perpendicular to the surface. Okay, so this is the equipotential surface of a positive point charge. It means concentric cells. Concentric cells which were drawn taking point charge as center. यानी इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए अगर आप कंसेंट्रिक शेल ड्रॉ करेंगे अलग अलग रेडियस के, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, और उनके हर पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस. वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल होगा, जो हमने अभी पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया. ओके,
So this is our first case. Now let's discuss the second case. The second case is equipotential surface of two equal and opposite point charges. यानी दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। अब हमें इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन करनी। आपको पता है इक्विपोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, एंड so this is the electric equipotential surface between the two charges. This is the equipotential surface. It means the equipotential surfaces are closer between the two opposite point charges. दो opposite point charges के बीच में ये क्या होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होती है। ये आप देख लीजिए, this one एक दूसरे के क्लोज हैं ये सारे के सारे। तो बस इसमें आपको ये लिख रहा है कि फिगर शोज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कंसिस्टिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे आर क्लोज टुगेदर, in the region of two charges. दोनों चार्जेस के बीच में ये क्या होती है, एक दूसरे के क्लोज। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर टू इक्वल एंड सेम पॉइंट चार्जेस। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस सेम साइन के हैं। ओके, सो फिगर शोज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस of two equal and positive charges containing plus q and plus q. दो चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू प्लस क्यू। अब आपको पता है दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या होती जाएंगे, लेटरली रिपल्शन, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेटरल रिपल्शन होता है। तो इट मींस दिस ब्लैक लाइन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर होती है। इन द रीजन बिटवीन द टू चार्जेस, एक दूसरे से जो दो चार्जेस के बीच का जो कॉमन रीजन होता है उसमें इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं, इंडिकेटिंग अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पर जो आपका फील्ड होता है वो कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी भी अपनी प्रॉपर्टी से आपका पढ़ा है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्लोज होंगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक होगा वहां पर आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से फार्दर अपार्ट होंगी। ओके, सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस बिटवीन द टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। द लास्ट प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे। तो फर्स्ट we will define uniform electric field. A parallel and equidistant electric field lines represent a uniform electric field. यानी parallel और equidistant field lines जहां होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच at every point of which electric field intensity remains same, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम दो पैरेलल इक्विडिस्टेंट प्लेन्स ले लें, एक प्लेन ये ऐसे हो गया, एक प्लेन ये ऐसे हो गया, तो ये इन दोनों इस पूरे प्लेन पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका सेम रहेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही इसके लिए होगा, तो इट मींस द पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट planes will be the equipotential surface. Equipotential surfaces in a uniform electric field.
ठीक है। तो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट जो प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे। सो दिस इज अवर टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स हैज बीन कंप्लीटेड।